Good morning, students. So now we are going to continue. At the time of dissolution of the firm, now these are the accounts which we have to be prepared, right? Because now firm is going to be dissolved and we have to close the accounts of the partner. Means we have to realize the assets, means assets are being sold, and we have to pay the liabilities. And whatever is left means surplus or deficiency, it must be divided among the partners in their profit sharing ratio. So like in admission of partner or retirement of partner, we were preparing revaluation account, right? Partners capital account and balance sheet. But now firm is going to be dissolved. So we have to prepare realization account instead of revaluation account. Why? Because now we are going to sold the assets and we are just going to pay the liabilities, and we need to prepare partners capital account, but in this partners capital account we will just pay the balance to the partners. In admission and in retirement of a partner हम क्या करते थे, हमने उनको बैलेंस कंटिन्यू करना था बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. अब यहाँ पे हमने बैलेंस कंटिन्यू नहीं करना. क्यों? क्योंकि फॉर्म खत्म हो गया एंड इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. So, like we know that assets are always have a debit balance. So, we are going to transfer all the assets except cash and bank. Transfer. To the debit side of realization account and next, like all liabilities have a credit balance, then transfer all the liabilities except partners capital and partners loan to the credit side of this account. And now when the assets are being sold, then the realized amount must be transferred to the credit of realization account. So when the assets are being sold, the amount will be transferred to the credit side of realization account. अब जब हमने ये प्रोसीजर किया था कि हमने एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है, जब एसेट सेल होंगे तो सबसे पहले हम पेमेंट किसको करेंगे? एक्सपेंसेस की. क्योंकि जब भी जो भी पर्सन ये एसेट्स को सेल करेगा देन ऑब्वियसली उसका खर्चा होगा, तो उसकी पेमेंट होगी. देन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. It may be borne by firm or by the partner. So it must be given in the question whether it is borne by firm or by the partner. But if it is related to realization, then obviously it will be transferred to realization account. So payment of realization expenses will be done on the debit side of realization account. सो आफ्टर डेट मीन्स अब जो हमने एसेट रियलाइज किए हैं हमने उसमें से पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज टू द आउटसाइडर मीन्स टू द थर्ड पार्टी लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. सो लाइबिलिटीज विच हैव ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, नाउ लाइबिलिटीज आर टू बी पेड and will be shown on the debit side of realization account. So after realizing the assets and paying off the expenses as well as the liabilities to the third party, so whatever amount is left will be profit or loss divided among the partners in their profit sharing ratio, right?
So this is the specimen of realization account. See, on the debit side, I've just posted these accounts. Here we have assets, stock, investment, land and building, plant and machinery, sundry debtors and joint life policy and motor vehicles. Suppose this is given in your account. Means this information is already given in the balance sheet, right? So हमने पहले क्या किया, जितने भी एसेट्स थे वो हमने ट्रांसफर किए, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. So this is not the cash at bank we have transferred, this is the amount payment to creditors. So we have transferred all the assets like BR, stock, investment, land and building, plant and machinery, sundry debtors, joint type policy and motor vehicles. Means except cash and bank. And in the same way we will transfer the liabilities and deferred revenue expenditures. Suppose on the liability side we have sundry creditors, bills payable, bank loan, provision for bad debt. Sometimes it is given on the liability side of balance sheet and sometimes it is written as a negative amount on the asset side from the debtors, like debtors less provision. So we will transfer full amount of debtors in this side. Suppose 40,000 debtor is given और उसमें से लिखा है less provision 2,000. तो 40 हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे और 2,000 प्रोविजन इस साइड ट्रांसफर करेंगे. ये नहीं कि यहाँ पे 38 और 2 नो, यहाँ पे 40 और 2,000 हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे. डेप्रिसिएशन फंड और रिजर्व, राइट. मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में लेबिलिटी साइड इट इज गिवन कितना उन्होंने डेप्रिसिएशन फंड रखा हुआ है, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू दी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एंड कई बार के क्वेश्चंस में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन होता है जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो. सो अगर तो इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट फंड लिखा हुआ है फिर तो हम ट्रांसफर करेंगे. अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है देन फंड डायरेक्टली विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो सपोज इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी सारे का सारा यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लेना, राइट. अब उसके बाद हमारी बारी है कि हमने एसेट्स को रियलाइज करना. सपोज हमने एसेट्स सेल किए, अगर तो हमने एसेट्स सेल किए, किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किए तो हम उसको तो लिखेंगे लाइक हमने स्टॉक सेल किया तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अदरवाइज बैंक टू स्टॉक होता है बट वी विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन क्योंकि हमने एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिए हैं. तो जब भी सेल करेंगे हम लिखेंगे बैंक टू रियलाइजेशन. सो मान लो जितने भी एसेट्स हमारे सेल हुए उसके लिए लिखेंगे बाय कैश और बैंक एसेट्स जितने भी रियलाइज हुए, राइट. सो सेम वे जैसे पेमेंट की हमने लेबिलिटीज की, मान लो हमने कैरेक्टर्स को पे किए, बीपी पे किया, कोई अनरिकॉर्डेड लेबिलिटी है, ठीक है, वो हमने पे की तो उसको डेबिट साइड टू कैश और बैंक, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ बीपी या पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लेबिलिटी और पेमेंट ऑफ बैंक लोन. ठीक है, जैसे हमने बैंक लोन यहाँ पे लिखा है तो हमने बैंक लोन भी पे किया तो डेबिट साइड. एंड इन द सेम वे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लेबिलिटी है तो डेबिट साइड पे ऑफ करेंगे. अगर अनरिकॉर्डेड एसेट साइड विल बी ट्रांसफर टू दी क्रेडिट से हम रिकॉर्ड करेंगे कि बाय, अगर हम रिकॉर्डेड एसेट सेल कर दिया तो बाय कैश और बैंक. और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया एसेट्स तो हमने कैश एट बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिखेंगे. सपोज वहां पे लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय एक्स, तो हम क्या लिखेंगे बाय एक्सेस कैपिटल, जितनी भी अमाउंट होगी एसेट की वो लिख देंगे. ऐसे अगर कोई लेबिलिटी किसी पार्टनर ने पे की है तो हम उसका नाम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल. मान लो वाई ने बोला कि बैंक लोन आई विल पे, राइट, तो हम लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, जितनी भी उसने बैंक लोन की पेमेंट की है क्योंकि हमने उसके बाद उसको उतनी अमाउंट ही पे करनी होती है, राइट. तो उसके बाद हमारा क्या है कि अगर हमारी कोई भी एक्सपेंसेस है मींस पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड आएगा टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, राइट. अगर वो फर्म के तो यहाँ पे आएंगे चाहे वो बॉन्ड बाय पार्टनर ही, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो पेड बाय पार्टनर है लेकिन फर्म के एक्सपेंसेस है तो हमने यहाँ पे पार्टनर का नाम, अगर फर्म के यहाँ फर्म ही पे करिए तो हम लिखेंगे टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस को अगेन आई विल एक्सप्लेन इन सम एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके. तो हमने एक्सपेंसेस भी पे कर दिया, लेबिलिटीज को भी पे कर दिया, एसेट भी रियलाइज कर लिया और पार्टनर ने किसी ने कोई लेबिलिटी पे करनी है वो भी पे हो गई. एंड सेम वे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लेबिलिटीज वो भी होगी. अब उसके बाद हम निकालेंगे फाइनल आंसर, मीन्स जो हमारी डेबिट है या क्रेडिट साइड दोनों का डिफरेंस लेंगे. अगर आपकी क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट मीन्स आपके एसेट जो सेल हुए हैं, जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो आंसर क्या आएगा प्रॉफिट. सो हम टू प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट. तो इन द सेम वे अगर लॉस है तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल तो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, ओके. सो अब इसके बेस पे वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज आल्सो एंड वी हैव टू प्रिपेयर realization account, means we are going to start the questions, okay. And before that I'll send one more lecture in which we will discuss about realization expenses, how it will be borne or paid by the firm, or it will be paid by the partner or borne by the firm, or maybe paid or bear by the firm, or maybe paid or bear by the partner, okay. So this is all about realization. Thank you.